Hello everyone, I'm Ishit Shah from Dolphin Academy. We will start with the chapter in probability. Actually, this chapter is very much easy, but we will start with its introduction. Very basic concept we will considering in this video lecture, because the same chapter, probability, you will face in 11th science as well as in 12th science. So if your base is not clear, then it will be very difficult to solve the problem at that time. So we will start with very basic concept of this chapter, probability. So we will start with the introduction. So I'm discussing some theories regarding it. So you already learned in standard 9th that experimental or also called empirical probability. This you already learned in 9th standard, experimental or empirical probability. Okay. Experimental or empirical probability of events which were based on the results, that is based on the results of actual experiment. तो आपने क्या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और प्रीवियस लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ चुके हो? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल a student A experiment of tossing a coin. A student A performing an experiment of tossing a coin 100 times. Let's take it 100 times. वो स्टूडेंट क्या कर रहा है? 100 टाइम एक कॉइन टॉस कर रहा है, इन विच he got 47 times head. 47 times head and 147, that means 53 times tail. 53 times tails. So you learn a formula of probability that is equals to number of trials divided by total number of trials. Number of trials divided by total number of trials. So for this experiment, probability of getting head H, that is equals to number of trials in which he gets head, that is 47, divided by total number of trials, that is 100. So that is 0.47. So its probability is 0.47, and probability of getting tail, that is 53 by 100. So that is 0.53. Clear? So let's check another student that does not agree with the experiment. So again perform one experiment. Student B, एक स्टूडेंट ऐसा था जो स्टूडेंट ए ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके साथ एग्री नहीं, वो बोल रहा है कि यहाँ पे 47 एंड 53 हेड एंड टेल नहीं आना चाहिए. तो उसने अगेन एक्सपेरिमेंट किया. कितने बार? अगेन ही परफॉर्म सेम एक्सपेरिमेंट 100 टाइम्स एंड he got 48 times head, and let's 100 minus 48, that is 52 times tail. So the probability of getting head for second student is 48 divided by 100, that is 0.48, and probability of tail, that is 52 by 100, that is 0.52. तो इस पे से क्या आप बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट किया वो गलत है, स्टूडेंट बी ने एक्सपेरिमेंट किया वो सही है? वी कैन नॉट से एनीथिंग. अगर कोई स्टूडेंट थर्ड है, स्टूडेंट सी, अगेन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है 100 टाइम्स, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ गेटिंग सम अनदर रिजल्ट. सो दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका अकॉर्डिंग जो उसका रिजल्ट आ रहा है उस पर से हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड are called an experimental
or empirical or experimental, those are similar words. Empirical probability. Clear? So first thing is clear, what is experimental or empirical probability? Okay, so in each experiment, 100 times tossing a coin, first time we will get different result, second time we will get different result, so each time it gives different result, so the probability estimates every time is different. So this is experimental or empirical probability. So one statistician, Carl Pearson, had tossed the coin 24,000 times. ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, आपको सीबीएसई और जीएसई जो भी आपका बोर्ड है उसमें कई बार पूछते हैं कि कार्ल पियर्सन ने कितनी बार कॉइन टॉस किया था. दैट इज 24,000 टाइम्स एंड ही गॉट 10210 हिट्स. एक स्टैटिस्टिशियन था कार्ल पियर्सन, उसने एक्सपेरिमेंट किया 24,000 टाइम्स कॉइन टॉस किया, जिसमें से उसको क्या मिला, ही गॉट 12,012 हिट्स एंड thus the probability, or we can say experimental, because उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, experimental probability of getting head. तो क्या होगा, probability of getting head, that is 12012 divided by total, that is 24,000, that is experimental probability. So number of trials for getting heads divided by total number of trials, so that is 0.5005. clear? एक और statistician था in 18th century, I am not writing here all the things, but उसका नाम था, French scientist था, French, that is the Buffon. He also performed the same experiment of tossing a coin, that is for 4040 times. कितने टाइम उसने एक्सपेरिमेंट किया, 4040 टाइम्स, फ्रॉम विच ही गेट 2048 टाइम्स हेड, 2048 टाइम्स हेड्स, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, दैट इज 2048 डिवाइड बाय 4040, एंड दैट विल बी 0.507. so approximate probability is, that is again 0.5005, that is 0.507. तब इसने कितनी बार किया था एक्सपेरिमेंट, 4040 टाइम्स, इतने एक्सपेरिमेंट किया 24,000 टाइम. सो नाउ थिंक, व्हाट इज द एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड if the experiment is carried out up to 1 lakh times, or let's take 10 lakhs times, and so on. करते ही गए ऐसे एक्सपेरिमेंट, 1 लाख 2 लाख 10 लाख करते ही गए एक्सपेरिमेंट, तो उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. So it is very time consuming as well as not possible. Such kind of experiment is not possible. आप 10 लाख बार कैसे coin toss करोगे, that is impossible thing. So we will feel that as the number of tossing a coin increases, the experimental probability, not simple probability, the experimental, because हम यहाँ पे experiment कर रहे हैं. So experimental probability of getting head or tail seems to be around, कितना होगा, probability of getting head or probability of getting tail seems to be around 1/2, that is 0.5. means अगर आप coin toss कर रहे हो तो उसमें इधर क्या आएगा, head और tail, तो head भी आ सकता है और tail भी आ सकता है, तो उसकी probability क्या होनी चाहिए, 1/2. जैसे यहाँ पे था, head आने की probability क्या थी, 0.5005, यहाँ पे क्या होगा, हेड की 0.507.
तो अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो आपका probability of getting head and probability of getting tail both are equal and that will be 1/2, that is 0.5 and which is called theoretical probability. क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे से मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है उस पे से मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे कार्ल पियर्सन ने किया, बफन ने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ए ने किया, स्टूडेंट बी ने किया, हर एक बार उसका प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रहा है. फॉर गेटिंग हेड यहाँ पे कितना है, 100 टाइम किया तो 0.47, यहाँ पे 0.48. कार्ल पियर्सन का आ रहा है 0.5005, इसका आ रहा है 0.507. तो हर एक बार हेड की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आ रही है. तो हर एक बार एक्सपेरिमेंट करके हम वहाँ से फाइंड तो नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप हर एक बार एक्सपेरिमेंट करो और उसका फाइंड करो. सो फॉर दैट हमने एक और कंसेप्ट ऐड किया, दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. जैसे हमने हेड और टेल दो पॉसिबिलिटी आ रही है तो हर एक का 1/2 हो जाएगा, 0.5. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल get introduction regarding to theoretical probability, also called classical probability. So your syllabus that covers theoretical or classical probability. Okay, now we will discuss some points that we will use in the next lecture. Some terms regarding to the probability like fair coin, balanced dice, equally likely outcomes. Then we will also use like term experiment, event. Then we will also use like sample space, trials, okay, sure event, impossible events. So all these terms, first we have to discuss about that terms, what is its meaning, then we will do the examples on it. So in this video lecture we will cover all the basic terms and its meaning. So first we will starting with the fair coin or balance die. Fair coin or balance die means symmetrical coin और symmetrical die. means अगर आप कोई coin toss कर रहे हो तो उसमें से हेड और टेल दोनों में से एक रिजल्ट तो ऑब्वियसली वो देगा ही. ऐसा नहीं होगा कि वो खड़ा हो जाएगा. कॉइन ऐसे कॉइन टॉस किया तो ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड फेयर कॉइन. कहीं पे फंस गया वो सब हमें कंसिडर नहीं करना है. आइदर वो हेड रिजल्ट दे रहा है और टेल रिजल्ट दे रहा है. बैलेंस डाई, आप जब भी डाई थ्रो करेंगे तो 1 to 6 में जो उसकी जो अपर फेस है उसमें 1 to 6 कोई भी एक रिजल्ट वो ऑब्वियसली देगा. दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाई. क्लियर? तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड, रैंडम टॉस. रैंडम टॉस मीन्स आप अगर कॉइन टॉस कर रहे हो और डाई कर रहे हो, टॉस इज अलाउड टू फॉल फ्रीली. मीन्स आप उस पर कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, उसको कोई बाहर से उसको इंटरफियरेंस नहीं हो. जैसे कॉइन टॉस हो रहा है, आप बीच में हाथ डाल रहे हो तो उसको इंटरफियरेंस आ गया, वो डिस्टर्ब हो गया और कोई रिजल्ट चेंज हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. आपने सिंपल एक बार टॉस किया कॉइन, जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल, उसमें बीच में आप कोई इंटरफियरेंस नहीं कर रहे हो. सो कॉइन और डाई इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस और इंटरफियरेंस. और विदाउट एनी बायस और इंटरफियरेंस, आप किसी भी तरह का इंटरफियरेंस नहीं कर रहे हो, जो रिजल्ट आएगा वो सही है. दैट इज कॉल्ड रैंडम टॉस. ये सब कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. अब जब भी आगे आएगा एग्जाम्पल रैंडम एक्सपेरिमेंट, तब आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट ही क्या होता है वो आपको नहीं पता चलेगा, तो आप सब में कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपको वो वर्ड पता होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी में हर एक वर्ड के अकॉर्डिंग आपका सम चेंज होता रहेगा, इसलिए. देन नेक्स्ट टर्म इज इक्वली लाइकली आउटकम्स. इंपॉर्टेंट टर्म, इक्वली लाइकली आउटकम्स.
सपोज वी टॉस 2 कॉइन्स, सपोज वी टॉस 2 कॉइन्स। तो अगर आप 2 कॉइन साथ में टॉस कर रहे हो एक साथ, तो पहले कॉइन पे अगर हेड आ गया तो दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है। पहले कॉइन पे हेड आ गया तो नहीं सर बोलेगा दूसरे कॉइन पे टेल क्यों नहीं आ सकता, टेल भी आ सकता है। पहले में भी टेल आ सकता है, दूसरे में हेड, यहाँ पे टेल, यहाँ पे टेल। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो गई। क्या हो गई? 4 पॉसिबिलिटी। सो ईच आउटकम हैज सेम प्रोबेबिलिटी। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी हो गई टोटल। तो ये फर्स्ट कॉइन हो गया, ये सेकेंड कॉइन, दोनों में एच आने की पॉसिबिलिटी 1/4 हो गया। इसका भी 1/4 हो गया, इसका भी 1/4 हो गया, और इसका भी 1/4 हो गया। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? सेम। ईच आउटकम, दैट इज कॉल्ड आउटकम, फर्स्ट आउटकम, सेकंड आउटकम, थर्ड आउटकम, फोर्थ आउटकम, ईच आउटकम हैज सेम प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4। So that is called equally likely outcome of tossing 2 coins. That is called equally likely outcome of tossing 2 coins. Now suppose we had a jar or a bag, simple a bag. Okay, उसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 ब्लू बॉल है। ये कैसा है? ब्लू। और 1 2 3 ये मेरे पास रेड बॉल्स है। ब्लू बॉल्स कितने हैं? 5, और रेड बॉल से 3। नाउ गेटिंग अ ब्लू बॉल, चलो वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा या नहीं होगा? गेटिंग अ ब्लू बॉल नहीं होगा, बिकॉज ब्लू बॉल आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू रेड। सो नाउ गेटिंग ब्लू बॉल having more likely क्या बोलते हैं? more likely means वही blue ball having more likely to come as compared to or than getting red balls. So getting blue ball having more likely to come than getting red balls. So it is not equally likely outcome, but you can say that for color there are 2 color, blue color and red color. तो ब्लू कलर का बॉल बाहर आएगा या रेड कलर का बॉल बाहर आएगा, उसका इक्वली लाइकली आउटकम बोल सकता है, बिकॉज ब्लू कलर की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ब्लू आने की भी और रेड आने की भी 1/2 हो सकती है। सो दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम फॉर कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर, 2 ही कलर है अंदर। सो इट इज इक्वली लाइकली आउटकम, बट फॉर गेटिंग अ ब्लू बॉल एंड रेड बॉल दैट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर? सो we will conclude from this that so all experiments do not necessarily have equally likely outcomes. हर एक एक्सपेरिमेंट में आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स होना जरूरी नहीं है, बट in your syllabus we will only discuss or we will consider that all the experiments have equally likely outcomes. जो हमारे सिलेबस में अभी है उसमें क्या कंसिडर करना है हमें? जो भी हम एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर रहे हैं that all have equally likely outcomes. Clear? So in 9th standard you learned one formula regarding probability of any event E और any experiment E. तब हमारा एक्सपेरिमेंट था, इवेंट नहीं था 9th में, because we learned that experimental probability that we already discussed. Experimental probability or empirical probability, that is P of E. Okay, sorry, again I am discussing it. Experimental probability or empirical probability of an event E, P of E is equals to number of trials in which
the event happened divided by total number of trials. Probability of E, any experimental probability that we already learned in 9th standard of any event E that equals to number of trials in which event happened. मीन्स अगर मुझे हेड चाहिए तो हेड कितने ट्रायल में आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ पे 3 हो गया. टोटल ट्रायल मैंने कितने किए, 4, तो 3/4. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन. इवेंट क्या है मेरा, हेड लाने का इवेंट है, तो हेड जितनी बार आ रहा है वो मेरा इवेंट हो गया. और ट्रायल्स, वो हेड लाने के लिए मैंने कितनी बार ट्रायल्स किए, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ 2 बार, तो मेरे पास आएगा HH, HT, TH, TT. ये 4 पॉसिबिलिटीज हो गई. तो अगर मेरी इवेंट E ऐसा बोला है, इवेंट E गेटिंग एग्जैक्टली और गेटिंग, चलो थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, गेटिंग मोर देन वन हेड, गेटिंग मोर देन वन हेड. ऐसे मुझे इवेंट E दिया हुआ है, गेटिंग मोर देन वन हेड. तो एक से ज़्यादा हेड आने की मेरा क्या हो गया, इवेंट हो गया. तो इवेंट क्या कौन सा है जिसमें एक से ज़्यादा हेड आ रहा है, एक फर्स्ट आउटकम. गेटिंग मोर देन वन हेड, तो 1 नहीं चलेगा, एक से ज़्यादा होगा तो ही चलेगा. तो एक से ज़्यादा इसमें 2 है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगेन दैट इज 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल कितने ट्रायल है, 4. समझ में आ रहा है. सो गेटिंग मोर देन वन हेड, मोर देन वन मीन्स एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मीन्स नॉट इज इक्वल्स टू 1 बट मोर देन 1. अगर यहाँ पे बोला होता एग्जैक्टली 1 देन वी विल कंसिडर दिस 2. और यहाँ पे बोला होता एटलीस्ट 1, क्या बोला होता, एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट 1 हेड मीन्स मिनिमम एक हेड होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा हो जाता एक हेड वाला और एक से ज्यादा हेड वाला. बट यहाँ पे बोला है मोर देन वन हेड, एक से ज्यादा हेड होने चाहिए, एक नहीं चलेगा. तो वो 2 हो रहा है यहाँ पे. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, इवेंट क्या है मेरी, मोर देन वन हेड, तो एक में ही ऐसा हो रहा है. सो 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4. और एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो मेरे इवेंट क्या हो गई, ये इवेंट हो गया मेरा कोई P और E है तो ये F हो गया, बराबर. सो P ऑफ F क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड. सोचो क्या होगा आपका, यहाँ पे इस इवेंट में कितनी बार हो रहा है मेरा, सही 1 2 3 बार, और ट्रायल कितनी बार हो रहा है, 4 बार. सो 3/4. समझ में आ रहा है, क्लियर. तो ये आप 9th में पढ़ चुके हो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. अभी हमें डिस्कस करना है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, it may be expensive, it may be time consuming, it may be unfeasible in many condition. So large number of trials is not possible. So हर एक बार आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी करके आंसर ले आओगे वो पॉसिबल नहीं है. जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, 10 लाख बार हमें कॉइन टॉस करना है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कितने हेड आए, तो एक्सपेरिमेंट करो, उसको नोट डाउन करो, वो डेटा मेंटेन करो. दैट इज नॉट पॉसिबल, वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग और अनफिजिबल. सो फॉर दैट we will take equally likely outcome concept here, and from that we will define a probability of event E that equals to number of outcomes favorable to E divided by number of all
possible outcomes of the experiment. क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी P of E. एक्चुअली इसको यहाँ पे लिखना चाहिए P of E that is equals to number of outcomes favorable to E. number of outcomes favorable to E. जस्ट उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज हुआ है, कंसेप्ट वही है. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सेम एग्जाम्पल लेते हैं यही. तो नंबर ऑफ क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, अगर ई मेरा इवेंट हो गया गेटिंग मोर देन वन हेड, तो फेवरेबल टू ई कितना, एक ही है. सो 1 डिवाइड बाय क्या मेरा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4, तो 1/4 हो गया. समझ में आ रहा है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रही है. बट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली. ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4. इक्वली लाइकली आउटकम्स ही हमें कंसिडर करना है. जो भी एक्सपेरिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं हर एक इक्वली लाइकली आउटकम्स ही हमें देगा. सो फॉर दैट प्रोबेबिलिटी P of E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E divided by number of all possible outcomes to all the experiment. Clear? Okay. Now we'll discuss some terms related to probability. Discuss some terms related to probability. First term is एक्सपेरिमेंट. ये सब थियरी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स है, इसके बिना हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, फॉर्मूला पढ़ लिया ये और उसके बेस पे से हमने एग्जांपल स्टार्ट कर लिया. बट वैसे करने में प्रॉब्लम वही होता है कि आप 1-2 दिन बाद भूल ही जाओगे चैप्टर, या कभी भी करोगे प्रोबेबिलिटी का उसका आंसर नहीं आएगा. दैट इज 101% श्योर. तो हमें उसके कंसेप्ट से पढ़ना है, उसको स्ट्रांग करना है, क्योंकि आपका बेस है वो अभी आपको 11-12 साइंस में प्रोबेबिलिटी उसके नेक्स्ट लेवल का आएगा. दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट. तो अगर आपका बेस ही वीक होगा तो वहां पे आप नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न ऑल द कंसेप्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. बिकॉज जब आप आगे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपका और नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे इंक्रीज होता जाएगा. जैसे हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इवेंट है, ट्रायल्स है, सैंपल स्पेस है, तो आगे जाओगे तब वहां पे आपका एग्जॉस्टेड इवेंट आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आएगा, वो सब और टर्म्स उसमें ऐड होते जाएंगे. तो अगर आपको यही बेसिक टर्म्स याद नहीं होंगे क्या थे, तब कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए मैं आपको बेसिक से करा रहा हूं एक्सपेरिमेंट. तो आप ये थियरी है तो बोर मत कर जाना, बिकॉज इसमें थियरी आएगा, उसके बिना हमारे चैप्टर स्टार्ट नहीं हो सकता. आई नो कि मैथ से तो सम्स ज्यादा होने चाहिए, बट द कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर कंसेप्ट क्लियर होगा देन ओनली यू कैन एबल टू डू. दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग यू टू द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. एंड सो एक्सपेरिमेंट एंड ऑपरेशन which can produce some well defined outcomes is called an experiment. An operation which can produce some well defined outcomes. जैसे मेरे यहाँ पे था, क्या था एक्सपेरिमेंट, कॉइन मैंने 2 बार टॉस करना था. 2 बार मैंने कॉइन टॉस कर दिया तो मुझे ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया. एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स. यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स क्रिएट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. क्लियर फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड, इवेंट. Each outcome of an experiment is called an event. Each outcome of an experiment is called an event. जैसे यहाँ पे था 2 heads, तो ये मेरा एक इवेंट हो गया. Each outcome of an experiment, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट हो गया पूरा. ये पूरा एक क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या था मेरा, एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट था मेरा 2 कॉइन को टॉस करना है, तो उसमें से मुझे क्या मिली, 4 इवेंट. बिकॉज हर एक आउटकम को हम क्या बोलेंगे, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट. तो दैट इज योर फर्स्ट इवेंट, दैट इज योर सेकंड इवेंट. इवेंट 1 हो गया, इवेंट 2, इवेंट 3 एंड इवेंट 4.
तो टोटल 4 इवेंट हो गई, हर एक आउटकम को हम बोलेंगे इवेंट। यही कंसेप्ट जब 11th साइंस में जाओगे तो इसका पे से एक और कंसेप्ट आएगा। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हर एक आउटकम को हम इवेंट बोलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ईच आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। देन नेक्स्ट, ट्रायल। बाय अ ट्रायल we mean performing an experiment. Trial means a performing an experiment means आप 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। ट्रायल कितनी बार करो, कितनी बार डाइट थ्रो किया, कितना ट्रायल किया आपको, उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंट। बाय ट्रायल दैट वी मीन परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक बार ट्रायल किया, एक एक्सपेरिमेंट, दूसरी बार किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर? देन सैंपल स्पेस, इंपॉर्टेंट वर्ड, सैंपल स्पेस। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अभी मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको आगे कराया, रैंडम टॉस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, द कॉइन और डाई इज अलाउड टू फॉल फ्रीली विदाउट एनी बायस और इंटरफियरेंस। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी जब मैं यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखता तो आपको डाउट होता है कि रैंडम क्या होता है सर, रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स, अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए। Random experiment, in a random experiment the set of all possible outcomes is called a sample space। आपको सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट उसके सब कंसेप्ट पता होने चाहिए। एंड इट इज denoted by capital S, and it is denoted by capital S। For example, अगर मैं 2 बार कॉइन टॉस, मैं एक ही एग्जांपल कंटिन्यूस रखूंगा, मैं 2 बार कॉइन टॉस कर रहा हूं तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग अ कॉइन, साइमल्टेनियसली, मीन्स 2 कॉइन को साथ टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, बराबर। 2 कॉइन को मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया तो मेरा एक बार आ रहा है एच 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 टी टी एच टी टी। ये कैसे लिखते हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी ये समझ लो, एच 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 टी टी एच टी टी। तो मेरा हर एक आउटकम क्या हो गया, हर एक आउटकम मेरा एक इवेंट हो गया, राइट। हर एक आउटकम मेरा एक इवेंट हो गया और सैंपल स्पेस क्या बना मेरा, हर एक आउटकम का एक यूनियन, एच 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 टी टी एच टी टी। तीन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। क्लियर? सैंपल स्पेस समझ में आ गया? ओके, नाउ बताओ कि एक मेरा इवेंट E1 है और एक सैंपल स्पेस S है, तो इसमें ये क्या होगा, सैंपल स्पेस E1 दैट इज अ सबसेट ऑफ S। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो फॉर एक एग्जाम्पल हो गया, सो फॉर एनी इवेंट E दैट इज अदर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S और इक्वल टू S। ये आपका इंपॉर्टेंट एक MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फॉर एनी इवेंट E दैट इज अ सबसेट ऑफ S और इज इक्वल्स टू S। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो ही आप ये कर सकते हो। क्लियर? नाउ सम एग्जांपल्स ऑन इट। बेसिक कंसेप्ट, एग्जांपल्स तो नहीं बोल सकते बट बेसिक कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे डिटेल एग्जांपल में। तो फर्स्ट आपका जो है वो टॉसिंग अ कॉइन, ऐसे आपको एग्जांपल्स आएंगे। टॉसिंग अ कॉइन मीन्स अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, एक कॉइन टॉस कर, तो आपका इधर हेड आएगा और टेल आएगा, तो उसका आपका 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अगर आप 2 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन आपका क्या आएगा, पहले कॉइन और ये सेकंड कॉइन हो गया। पहले कॉइन में हेड आ सकता है, सेकंड कॉइन में टेल। पहले में हेड है तो सेकंड में भी हेड हो सकता है, पहले में टेल, सेकंड में हेड, टेल टेल। तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई। अभी इसको लिखना क्या है, कैसे, वो समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार कॉइन टॉस किया तो 2 था, 2 बार कॉइन टॉस किया तो 1 2 3 4 हो गया। मीन्स मेरा बेस क्या हो गया, इसमें कॉइन टॉस कर रहा हूं, कॉइन का रिजल्ट कितना होता है, इधर हेड होगा और टेल होगा। 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है,
कॉइन के केस में दो ही रिजल्ट पॉसिबल, आइदर हेड और टेल, दो रिजल्ट। तो मेरा बेस हो गया 2, बेस हो गया 2 रेस टू एन, एन योर नंबर ऑफ टॉसिंग, कितनी बार आप टॉस कर रहे हो वो एन हो गया। अगर आप एक बार टॉस कर रहे हो तो 2:1 तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2, एच और टी आ गया। अगर आप 2 कर रहे हो तो 2:2 4, तो 4 रिजल्ट आ रहा है। अगर आप 3 बार कर रहे हो तो 8 रिजल्ट आएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, अभी इसको लिखना कैसे? जैसे 4 रिजल्ट है तो 4 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 2 2, तो आप पहले 2 बार एच लिख दो, 2 बार टी, फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर इसको अगेन हाफ कर दो। यहाँ पे 2 बार एच 2 बार टी लिखा तो उसका हाफ क्या होगा? 1, तो 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, बन गया आपका सैंपल स्पेस। अभी आपको 2:3 8 का लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, 8 का 2 पार्ट कितना होगा? 4, तो 4 टाइम्स मुझे एच लिखना होगा और 4 टाइम्स टी लिखना पड़ेगा। चलो 4 टाइम्स एच लिखा, 4 टाइम्स टी लिखा, 4 का हाफ क्या होता है? 2, तो 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो। उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? 2 बार एच 2 बार टी, सिंपल। अभी 2 का हाफ हो रहा है 1, तो 1 बार एच 1 बार टी, एच टी एच टी एच टी, तो 8 पॉसिबिलिटी हो गई। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम बन गए आपके। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ऐसा आप इसको सैंपल स्पेस बना सकते हो। ये आपका हो गया पूरा सैंपल स्पेस। हर एक आउटकम का आप कंबाइन करके लिखो, वो क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। क्लियर? तो टॉसिंग अ कॉइन का एग्जाम्पल था ये, जो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। क्लियर? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थ्रोइंग अ डाई, एक डाई मैंने थ्रो किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 कुछ भी आ सकता है। अगर मैं एक डाई थ्रो कर रहा हूं तो उसमें बेस क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे बेस लिया था पॉसिबिलिटी 2, तो बेस हो गया 2 और 2:n टॉसिंग आ गया। तो आप यहाँ पे कितने भी बार टॉस करोगे वो फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हम बनाते हैं एक बेस वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6:n, n क्या होगा? अगेन आपका नंबर ऑफ टॉसिंग। अगर एक बार टॉस करे तो 6:1 6 आ गया। क्लियर? अगर आप 2 बार करो 36 पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, तो उसका मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। 36 एलिमेंट्स लिखना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, एलिमेंट, एक और वर्ड आया एलिमेंट, मीन्स हर एक जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एक एलिमेंट बोलेंगे। 1 एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट ये एलिमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो 36 मीन्स 2 बार टॉस किया तो पहली बार 1 आ सकता है, दूसरी बार भी 1 आ सकता है। पहली बार 1, उसके साथ 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली 4 1 2 4 6 सारे आ सकते हैं। आपको सारे लिखने हैं, 5 1 2 5 6 एंड 6 1 2 6 6। ऐसे 36 आपके पॉसिबिलिटी हो गई। समझ में आ रहा है? क्लियर? जब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब यही सब थिंग यूज होगी आपकी। जैसे यहाँ पे टॉसिंग का कॉइन किया तो ये आपका बेसिक हो गया। पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। डाई थ्रू कर रहे हो तो उसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, उसके बिना आपका प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सैंपल स्पेस कैसे बनाना है वो सिखा रहा हूँ आपको। थर्ड केस हो गया आपका ड्रॉइंग अ कार्ड। तो अभी आप घर पे बैठे हो, लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़े बड़े पत्ते खेल लिया करो यार। पत्ते खेलोगे तभी उसके एग्जाम्पल्स आएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। एक होता है उसमें सूट्स। सूट मीन्स कलर। जैसे आप बोलते हो कि ब्लैक सूट मीन्स उसका शेप हो गया। जैसे आपका ये हो गया, कितने सूट होते हैं? 4। जैसे यहाँ पे हो गया एक स्पेड्स। स्पेड्स मीन्स अब जो गुजरात मीडियम में जो खेल है वो बच्चे क्या बोलते हैं उसको? स्पेड्स मीन्स काली, काली बोलते हैं, काली कलर, काला कलर पत्तू से काली। देन आप बोलते हो क्लब, दैट मीन्स फल्लई। देन हार्ट एंड डायमंड। डायमंड्स मीन्स चरकट, जो गुजराती में जिसको पता है उसके लिए। ये हो गया काली, फल्लई, लाल एंड चरकट। क्लियर? दैट इज सूट्स। तो हर एक सूट्स में कितने हो गए? सूट्स कितने हो गए? 4। तो हर एक में कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स। मीन्स स्पेड्स के 13, क्लब के 13,
हार्ट के 13 एंड डायमंड के 13, टोटल हो गए 52। जॉकर काउंट नहीं करना है यार, समझ में आ रहा है? जॉकर मत ले लेना इसमें। सर मेरे में तो 52 कार्ड्स है, मेरे पास जो डेक है उसमें 52 कार्ड्स है, 54 कार्ड्स है, ऐसा मत बोल देना, ठीक है? हर एक डेक में 54 मतलब 2 जॉकर होते हैं, हमें काउंट करना है सिर्फ मेन 52 कार्ड्स। देन एक होता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स उसको ऑल्सो बोलते हैं ऑनर कार्ड। वो कौन से होते हैं? जिसके ऊपर फेस ड्रॉ किया होता है उसको बोलते हैं फेस कार्ड, लाइक किंग, क्वीन एंड जैक, दैट इज योर फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो गए? किंग कितने होते हैं? एक नहीं होता भाई, हर एक में एक एक होता है। टोटल 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गए और 4 जैक हो गए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गए। समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मीन्स सपोज वी थ्रो अ डाई, तो मेरे ऊपर जो हमने एक डाई थ्रो किया उसके ऊपर जो फेस है उसमें 7 आ रहा है, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। 7 नहीं हो सकता सर, क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं, हाँ, तो सपोज वी थ्रो अ डाई, इट गिव्स ऑलवेज लेस देन 7, बिकॉज वो क्या दे रहा है हमें? 1 2 3 4 5 6, तो उसका अपर फेस में आइदर 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है, तो ऑलवेज इट विल बी लेस देन 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑन अपर फेस लेस देन 7 इज इक्वल्स टू 6/6 इक्वल्स टू 1। कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फेवरेबल आउटकम इवेंट के कितने हो गए? 6 डिवाइड बाय टोटल आउटकम भी कितना है? 6, तो हो गया 1। तो कोई भी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगा? 1। श्योर इवेंट, आपका सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट, तो ऑलवेज इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। सन राइज जहां से हो रहा है वो वेस्ट में से होगा कभी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो ऑलवेज इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। वो ऐसा ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। देन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स अगर आप डाई थ्रो कर रहे हो और आपका नंबर इक्वल टू 7 आ रहा है, तो 7 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। आपका सन राइज कभी वेस्ट से या नॉर्थ से हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इज इक्वल्स टू 7, दैट इज 0, बिकॉज मेरा नंबर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 to 6 हो जाएगा। 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 0/6 दैट इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट का ऑलवेज प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। श्योर इवेंट का ऑलवेज प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, इम्पॉसिबल का ऑलवेज प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 0। एंड द लास्ट टर्म दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अगर कोई इवेंट ई है, एन इवेंट, तो नॉट ई, that is called complementary of E, not E. Event which occurs only when event E does not occur. जब E नहीं हो रहा है तभी not E होगा। That means अगर P of E हो रहा है तो P of not E नहीं होगा, तो P of E plus P of not E, that will always give 1. The occurrence of event and not occurrence of event, the probability of the addition of this both probability is equals to always 1. एक रिजल्ट आपको और याद रखना है, that is most important. P of not E को हम लिख सकते हैं P of E dash, तो ऐसे भी बना सकते हैं इक्वेशन, P of E plus P of E dash is equals to 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं P of E dash is equals to 1 minus P of E. P of E इस साइड चला गया, so 1 minus P of E। समझ में आ रहा है? क्लियर? एक और थिंग आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज -0.1,
अरे यार मजाक मत करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकते थे, ये फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, क्लियर। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम 1 दैट इज फॉर श्योर इवेंट एंड 0 फॉर इम्पॉसिबल इवेंट। और एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया P of E plus P of E dash is equals to 1, E dash that is complementary event of E, क्लियर। इसके एग्जांपल्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के एग्जांपल्स, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ये सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, बट दैट इज इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसिडर करेंगे ये सारे, टॉसिंग अ कॉइन के एग्जांपल्स है, थ्रोइंग अ डाई के एग्जांपल है, कार्ड के एग्जांपल्स है। ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं कार्ड के, तो ये अच्छे से आने चाहिए, आपको सारा समझ में आना चाहिए सब, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के एग्जांपल्स, ये सब करेंगे हम, बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप ये अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एक बार सारी थियरी लिखो, प्रिपेयर करो, देन विल डिस्कस मोर एग्जांपल्स इन नेक्स्ट वीडियो lecture. Till then, bye-bye. Thank you guys. Keep liking my videos and kindly subscribe my YouTube channel for more updates regarding this chapter, and also share with your friends. Thank you. Keep liking.